سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے پروگرام کا سہرا 3 لوگوں پر ہے، شاہد، انعام اور صدف. تو آپ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بزم ادب کے ساتھ لگاؤ آپ لوگوں کا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ بزم قائم ہے. اس تقریباً 20 سال ہو گئے، میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ بزم کو شروع کیا تھا، اور آپ کی سپورٹ ملتی رہی اور بزم زندہ رہتی رہی. کہ بزم کا مقصد اردو ادب کو پروموٹ کرنا ہے اور ہماری قومی روایات کو برقرار رکھنا ہے. آج کے پروگرام کا مقصد ان حضرات کو ریکگنائز کرنا ہے جنہوں نے اردو ادب کو تقویت پہنچائی ہے اور فروغ دیا ہے اور ہماری زندگی کو دوبارہ کیا ہے. تو آئیے اس پروگرام کا افتتاح کرتے ہیں. اور السلام علیکم. سب سے پہلے تو مسرت بھائی اتنا ہمبل ہو کے بیچارے بات کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس بزم کے روح رواں ہیں. ایک دفعہ بھرپور تالیاں مسرت بھائی کے لیے، کیونکہ جس وقت ہم نے یہ پروگرام، یہ سفر شروع کیا تھا بزم ادب کا، تو مسرت بھائی اور دوشی آپا اس میں 22 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. تو چلیے اب میں اس طرح پروگرام شروع کرتی ہوں جیسا میں نے سوچا تھا. اوکے. عجب سی دل میں ہے کسر، عجب سی دل میں ہے کسر کہ اب کے روز عید پر نہ دوستوں کی محفلیں، نہ دل بروں سے مجلسیں، مٹھائیاں نہ خور میں، نہ قہقہے نہ رت جگے. کہ حکم ہے غنیم کا، کہ حکم ہے غنیم کا اطاعت وبا کرو، کہ حکم ہے غنیم کا اطاعت وبا کرو. دبک کے اپنے گھر رہو، نہ اب کہ تم گلے ملو، سلام دور سے کرو. نئی یہ ریت پڑ گئی، نئی یہ ریت پڑ گئی کہ دست یار مس نہ ہو، نئی یہ ریت پڑ گئی کہ دست یار مس نہ ہو. ملاپ میں لمس نہ ہو، جہاں پہ ہو وہیں رہو، ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہو. سبھی طبیب شہر کے، سبھی خطیب شہر کے، سبھی طبیب شہر کے، سبھی خطیب شہر کے، تمام امیر شہر کے بجز غریب شہر کے ہیں متفق بلا فصل کہ ناگزیر ہو گیا معاشرے میں فاصلہ. کلام میں بھی فاصلہ، سلام میں بھی فاصلہ، دل و نظر کے بین بین اداس میں بھی فاصلہ. ستم ظریفی دیکھیے، ستم ظریفی دیکھیے کہ مفتیان شہر نے بھی کہہ دیا ہے برملا کہ ان دنوں میں ہے روا نماز میں بھی فاصلہ. خدائے ہر بلند و پست، خدائے ہر بلند و پست، پسند تیری خدائی کی، جلال کبریائی کی کہ ہم میں ہے کہاں سکت بجز تیری نیاز کے کہ اس بلا سے بچ سکیں. ہے واسطہ تجھے تیری، ہے واسطہ تجھے تیری کریمی صفات کا، وسیلہ کرم تجھے تیرے حبیب پاک کا. مصیبت جہان کی بروز کن تو ٹال دے، مصیبت جہان کی بروز کن تو ٹال دے، وبا کے اس وبال سے نکال کر امان دے. زمین کو پھر سے عزم رقص زندگی کا دان دے. اس دعا کے ساتھ ہی آپ سب کو ایک بار پھر صدف فاروقی کا سلام اور بزم ادب کے 22 سال مکمل ہونے پر بہت بہت مبارکباد. یہ 22 سال کا سفر ہم نے جس خوبی سے طے کیا، مجھے 20 سال ہوئے ہیں، جب میں نے جوائن کیا 2 سال ہو چکے تھے. تو یہ جو 22 سال کا سفر ہے، اس میں ہم نے اتنے شاندار پروگراموں سے اس شہر کو کہہ لیجیے کہ ہم نے متعارف کرایا یا خوشناس کرایا کہ جس وقت ہم ایمری میں پروگرام کیا کرتے تھے، ایمری یونیورسٹی کے تھیٹر میں، وائٹ ہال میں،
تو وہ تقریباً 275 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی تھی اور اس میں لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھا کرتے تھے. بہرحال ان 22 سال کو ہمارے ایک شخص جہاں پہ بہت ہی ہمارے قریبی جن سے ہمارا سمجھے کہ دلوں کا تعلق ہے, انہوں نے ان 22 سالوں کو ایک کوزے میں بند کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر شاہد رفیق کے ساتھ 22 سال کی حیات سانگ بس میں کا. مجیدہ منجیر اور مجیدہ مجیدہ کہنے والوں کے سامنے تعلق کرائے مجید یا اللہ مجید کہنے والے مجید. ویسے میری آواز, ہاں سب سے پہلے تو آپ لوگ بھرپور تالیاں بجائیے بزم ادب کے 22 سالوں کو. جس طرح شاہد بھائی نے یہ ویڈیو کمپائل کی ہے, ان کے لیے میں یہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ ویسے تو کشش اور رانائی ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں, لیکن وہ بہت ہی کم ہیں جو جان سے پیارے ہوتے ہیں. شاہد بھائی اس ون آف them. شاہد بھائی کے لیے جتنا کہا جائے کم ہے. بے لوس ہو کے ہر کام کرتے ہیں, بڑی محنت, بڑی محبت سے. خیر, بات کرتے ہیں بزم کے 22 سال کے سفر کی. وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو آج ہمارے اس کارواں میں بزم کے کچھ نئے مہمان بھی آئے ہیں. میری ابھی ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بھی اٹلانٹا میں نئی آمد ہوئی ہے ان کی, اور آج پہلی دفعہ بزم ادب کے پروگرام میں وہ تشریف لائے ہیں. تو بزم ادب کی جانب سے میں زمین خان اور افشاں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور انہوں نے فیس بک سے بھائی ہمارے بزم کے پیج سے پروگرام کا انویٹیشن دیکھا اور یہ لوگ آئے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. خیر, پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ بیوی سے جان چھڑا سکتے ہیں لیکن کسی شاعرہ سے نہیں. سو میں جانے والی نہیں ہوں اتنی آسانی سے. کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اور آپ لوگ تالیاں بجا سکتے ہیں. ذرا کچھ تھوڑا سا جاگیے یار, اتنی اسٹرانگ چائے بنا کے آپ لوگوں کو دی ہے. تو ہم چلتے ہیں ہماری بزم کی ایک بڑی نئی کارکن سمجھ لیجئے کہ ہم نے بہت سے نئے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے بزم کے اس محفل میں اور اس کارواں میں. تو میں اب دعوت دوں گی ہماری بہت ہی اچھی نئی بزم کی ممبر فرحہ کو کہ فرحہ تو آ کر کچھ کلام پیش کریں. ایک بات اور کہہ دوں کہ ضروری نہیں کہ جو آپ یہاں پڑھیں وہ صرف آپ کا لکھا ہوا ہو. ہر ایک ہزار میں 5-7 ہیں ہم لوگ, نصاب عشق پہ واجب زکوٰۃ ہیں ہم لوگ. تباؤ میں بھی جماعت کبھی نہیں بدلی, شروع دن سے محبت کے ساتھ ہیں ہم لوگ. کسی کو راستہ دے دیں کسی کو پانی نہ دیں, کہیں پہ نیل کہیں پہ فرات ہیں ہم لوگ. یہ انتظار ہمیں دیکھ کر بنایا گیا, ظہور ہجر سے پہلے کی بات ہے ہم لوگ. ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے, جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے. رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی, کہہ کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے. جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے, ایک درگاہ پہ سب رانگائے درگاہ ملے. میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے, شہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے. ایک ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسے لگی, جیسے مزدور کو ہڑتال کی افواہ ملے. خون بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے. بس اتنا ہی تھا میرے پاس. بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. بہت شکریہ فراتون. یہ تھی ہماری بزم کی نئی ممبر. ہمارے بہت سے بزم کے لوگ نئے ہمارے اس میں شریک ہوئے ہیں, جس میں ہم خوش آمدید کرتے ہیں چندرا اور محمد فاروق ہمارے نئے ممبر, جو کہ اب آئندہ سے چائے بنائیں گے, میں نہیں بناؤں گی. اور اس کے علاوہ شاہد علی اور صبا خان, یہ لوگ سب نئے لوگ ہیں. تو ہم ان کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آئندہ یہ لوگ چائے بنائیں گے.
तो मैं उस दिन मेरी शाहिद भाई से बात हो रही थी कि मैं शाहिद भाई 20 साल हो गए चाय बनाते बनाते। खैर हंसी मजाक अपनी चलता रहेगा, महफिल को आगे लेके चल। सबसे बड़ी बात जो मैं इस तरह आप लोगों से गुफ्तगू करती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि मुझे लगता है मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। ये 20 साल का जो सफ़र, जो मोहब्बतें आपने शहर को दी हैं, वो यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। आप लोग हैं तो हम हैं, हमारी वजह से आप नहीं, आपकी वजह से हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं। ठीक बात करती हूँ। ये बात भी जालिम ने उर्दू में कही है, राइट? सो कहते हैं कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नीलू होकर भरा करती है पैमाना। आज का इस महफिल का खास मकसद मशअले राह है क्या? हम आज आप लोगों के सामने उन लोगों को यहाँ पे लाना चाहते हैं जिन्होंने 22 साल का जिक्र तो मैं बज़्म अदब के हवाले से कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने इस दयारे गैर में पिछले 40 बरसों में उर्दू अदब की नई बस्तियाँ बसाई। ये 40 साल का सफ़र है और ये ऐसा है कि जैसे सूरज को चराग दिखाना। तो उस हवाले से हमने सोचा कि उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए और ये देखा जाए कि वो जब यहाँ आए थे और यहाँ पे किस तरह और इस बंजर इलाके में क्या खूबसूरत उर्दू की सरसब्ज़ शादाब बस्ती उन्होंने यहाँ बसाई है। तो उसके लिए मैं गुफ्तगू जो होगी मैं उसके लिए दावत दूंगी हमारी और आप सबकी बहुत अच्छी जानी पहचानी शख्सियत फरजाना भरमल और उनके साथ मेरे सरताज अजहर फारूकी। सरताज पे आप लोग इतनी कम तालियां बजाएं यार, मेरा मुझे घर जाना है। अब बच्ची का सर बड़ा हो रहा है, ताज पे चलता जा रहा है। और मेरे साथ काफी लोग हैं जो तालियों से महरूम हैं, कोई बजा सकते हैं और वही आपसे आगाज करते हैं। और किसको मालूम कि हम हुस्न सना शान अज़ल कितने आहाम से गुजरे तो यकीन तक पहुंचे। तो आहाम अनसर्टेनिटीज। तो तो मैंने कहा दूर तक से आवाज चली रहेगी। ओके। किसको मालूम कि हम हुस्न सना शान अज़ल कितने औहान से गुजरे तो यकीन तक पहुंचे। यकीन यानी कि अभी तो अब तो आ रही है ना आवाज, आ रही है। ओके। सो हाज़रीन कराम, सफ़र अब चाहे इंफरादी हो या इज्तिमाई हो, सफ़र में बड़ी सहूलतें होती हैं, मुश्किलात होती हैं और डिफ़िकल्टीज़ होती है मंजिल दर मंजिल पहुँचने में। लेकिन हर जमात में, हर कम्युनिटी में, हर दौर में ऐसे अफराद होते हैं जो उस सफ़र को आसान बना देते हैं और हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं उनकी मौजूदगी की वजह से। तो हम उन लोगों को दिल में हमेशा अप्रिशिएट करते ही हैं, हमें मालूम होता है। लेकिन कभी वक्त की किल्लत की वजह से, कभी ये कि हमारी तरजीहात अलग होती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ होती हैं और कभी महज तजाही की बिना पर हम जो कहना चाहते हैं वो उनको सही तरह कहने में देर कर देते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बज़्म अदब अटलांटा ने ये आज की इस तकरीर में इस रिवायत का आगाज़ किया है कि हम कि जिन्होंने हमारी हिदायत माता की उमूमी तौर पे तो हर किसी की लेवल पे, लेकिन खास तौर पे खुसूसी तौर पर हमारी अटलांटा की सकाफती, समाजी और तरक्की में, प्रोग्रेस में, तहरीर में और अदबी तक़रीबात के इनक़ाद में किसी न किसी तरह से पार्ट प्ले किया है, मेजर पार्ट प्ले किया है।
भले ना वो सरबराही का किरदार हो, यानी कि लीडरशिप का रोल हो, या पसे पर्दा रहकर पस मंजर में रह के मदद की हो, या अपनी इल्मी फाजिलियत और अपनी दानिश्वरी की बिना पर हमें इस मुकाम पे लाए हैं कि यहाँ पर तो उन लोगों को हमने, और बहुत से लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, हम खुशकिस्मत हैं कैसे लोग हैं, तो उनको हम सराहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा बहुत से लोग हैं, तो आज हमने लोग तीन हैं जिनके लिए हम अपना खराज तहसीन पेश करेंगे। कितने ही फूल चुन लिए मैंने, कितने ही फूल रह गए बाकी। तो सबसे पहले मैं दावत दूँगी हमारी अपनी घर के अजीज अहमीना ज़ैदी साहिबा को तशरीफ़ लाएं और हम सब इनको अच्छी तरह पहचानते हैं और इन्होंने बहुत से फलाही काम किए हैं हमारी कम्युनिटी में, ख़ास तौर पे नई नस्ल के लिए, यंग नस्ल के लिए, यंगस्टर्स के लिए। पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन और मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन की इन्होंने बुनियाद रखी। बहुत से काम हैं। मुख्तसरन ये कहूँगी कि हम स्पेशली ख़वातीन के लिए हमें ये चाहिए कि इनके नक्श कदम की पैरवी करें, क्योंकि जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं खयाबा हयाबा एवं देखते हैं, सबसे बड़ी साहबजादी का नाम है। तो अब आपने हमारे दूसरे साहब ख़ास शख्सियत को दावत दूँगी। आप सब उनसे वाक़िफ़ हैं जनाब हसन कमाल साहब। हसन कमाल साहब को कौन नहीं जानता। इनका ताल्लुक इंडिया से है, अलीगढ़ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन और अलीगढ़ की सारी एक्टिविटीज़ से रहते हैं बाकायदगी से, मगर वो तो सिर्फ बात अपनी खराब है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, सारे जहाँ कदर हमारे शेर इनके ऊपर सारे। क्या बात है कि कोई कहीं बीमार हो, कोई किसी को माशी मुश्किलें हो, कहीं पे कोई फैमिली कोई इशू हो गया हो, यहाँ अटलांटा में हो या समंदर पार हो, ये हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और मज़े की बात ये है कि ना सिर्फ ये कि खुद तैयार हुए हैं, हम सबको भी जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनको भी इंस्पायर करते हैं और उससे मुंसलिक कर देते हैं ताकि हमें भी अपनी आक़िबत संवारने का मौका मिले। तो ये हमारे हसन कमाल साहब हैं। और अब हाज़रीन कराम, अटलांटा के वासी और जो ताज़ा वारिद लोग हैं उनके लिए ख़ास बात कि हम हमारी अटलांटा कम्युनिटी बड़ी खुशकिस्मत है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक बड़े आला पाए की शख्सियत है जो यहाँ पे बरसा बरस से मौजूद है। और ये हमारे लिए ना सिर्फ बाइस इज़्ज़त है, बाइस इफ्तिखार है कि एक बैनुल अक़वामी स्टेटस रखने वाली, हैसियत रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। और किसी का किसी और का जिक्र नहीं किए हैं जनाब सकी खातून से। जब तक वो तशरीफ ला रहे हैं, उनका एक मेरा पसंदीदा शेर है, मैं सुना कि हुस्न जिस हाल में नजर आया हमने उस हाल में परस्तिश की। ये उनका एक शेर है और इसकी खूबसूरती बड़ा मुबम सा है, जुबानी शेर है कि उसमें जो लफ्ज़ हाल है वो फ़ाइल के लिए है या मफ़ूल के लिए, यानी कि वो जिस हाल में परस्तिश की वो हाल किस हाल की जिक्र कर रहे हैं, इसकी परस्तिश की जा रही है या जो इसका जो परस्तिश कर रहा है। बड़ा खूबसूरत शेर है, कभी मौका मिले तो और करिएगा।
तो ये ज़कीर काकोरी साहब हैं और ये कहना कि क्या कहते हैं सूरज को आईना दिखाने वाली बात, तो बहुत सी किताबें लिखी हैं, तस्वीर की हैं, वो तो हम कई लोगों के लिए कहते हैं इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया से सीखी। इंसाइक्लोपीडिया लिखने के लिए सैकड़ों लोगों की बल्कि एसोसिएशन की ज़रूरत होती है और उन्होंने वो इंसाइक्लोपीडिया जो कि उर्दू अदब का खजीना है, बेशबहा खजीना है, वो उन्होंने तस्लीम की है। तो ये हमारे लिए बड़ी ही इज्जत की और बड़े फख्र की बात है कि हमारे यहाँ साथ हैं इस चीज़ का। तो जैसा कि मैंने पहले कहा और सदफ ने भी मेंशन किया था कि हम इन साहिबान को खराज तहसीन पेश करेंगे, तो पहले थोड़ी सी ज़रा गैर रस्मी किस्म की बातें करते हैं और फिर मुनज़्ज़म तरीके से फॉर्मल वे में हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आसिफ। आपसे ख़वातीन से स्टार्ट, वजूद रंग से कायनात में रंग, तो आप रंग बिखेरिए, बताइए अपने बारे में कुछ। वैसे तो आधी ज़्यादा दुनिया जानती है आपको, एटलांटा के वाले तो ऐसे ही जानते हैं, थोड़ा माइक तो चलें, मैं फरजाना ने काफ़ी बताया है, बड़े सब आप लोग सवाल हाँ। मुझे ये कहा गया था आपने मुझे, तो इसमें यह है कि आप ऐसा करें, ये बताइए कि अटलांटा में आप कितने साल से हैं, तो जाहिर है कि आपको यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगी होगी, जब तो 30 साल से ये यहाँ पे हैं। 60 साल 60 साल 1965 में आई थी। निकाल मुझे कहा गया था कि निकालें और मैं चेहरा दूर रखना चाहती हूँ। ओके, तो मैं आपसे ये पूछूंगी तमीना कि इस शहर को की चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, चाहे जब के अरसे से यहाँ पे हैं, क्या चीज़ें जो आपको अटलांटा शहर की अच्छी नहीं लगी? आई थिंक साउथ इटसेल्फ जो है बहुत ही हॉस्पिटल था और अब भी है। रेसिज्म का जो चक्कर चला हुआ है वो बहुत ही शायद दूर दूर तक उस वक्त नहीं था। हालांकि जब मैं अटलांटा आ रही थी, मुझसे किसी ने कहा था हमसे कि वहाँ ना जाएं क्योंकि वहाँ उस ज़माने में मार्टिन लूथर किंग का भी बहुत चर्चा था और राइट्स भी बहुत हो रहे थे। हम लोग फिर भी आए और अटलांटा को बहुत ही अच्छा पाया और यही दिल जमा के बैठ गए। हालांकि अकबर जो मेरे मियाँ हैं वो कई दफ़ा उन्हें बाहर भी जाना पड़ा, मगर मैं बच्चों को लेके यहीं रही, क्योंकि एक तो ये कि मौसम भी बहुत अच्छा था और फिज़ा भी थी और बाहर भी थी, हर चीज़ था और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छी थी। तो अटलांटा से हम लोगों को यही घर रहा, यही हर चीज़ रही। बच्चे यहीं पैदा हुए, बच्चे यहीं बड़े बड़े, शादियाँ हुई, उनके बच्चे हैं। मगर अभी भी द सदर्नर्स आर वेरी हॉस्पिटल और मैं समझती हूँ अटलांटा इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लिव। अगर आप लोग बाहर दूर से आए हैं तो प्लीज़ मूव हो जाइए, डैलस वेलस कहीं के भी लोग जो हैं। यानी कि अटलांटा की कोई चीज़ आपको नागवार नहीं लगी? नहीं, कुछ नागवार नहीं मुझे, बल्कि मेरी बहुत अच्छी यादें हैं और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं अटलांटा की। मुझे आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका लहराना। इस ज़माने में तो यही होता है, जैसे कमर जलालवी ने कहा है कि वो मैं चुप के भूलता हूँ जवानी के घर गई, तो वही हर्ष हमारा इस वक्त है। बढ़ा बढ़ा के जपाए झुकाए जो के कमर, बढ़ा बढ़ा के जपाए झुकाए जो के कमर, घटा घटा के कमर को लाल कर अच्छा, तो सवाल साहब आपसे एक सवाल राजेश्वरों से और आलोक से सुनते हैं। दानिश्वरों से और आलिमों से हम सीखते आए हैं, किताबों में पढ़ा है कि इश्क की कई किस्में होती हैं। मजाजी इश्क, इश्क हकीकी, मिजाजी इश्क, सच्चा सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क, झूठा इश्क।
तो मैं जान के अमान को आके आपसे सवाल करूँगी हसन कमान साहब कि आपका इनमें से किसी भी इश्क से कोई वास्ता बना? अस्सलाम वालेकुम। इनका ये सवाल जो है, जो चीज़ को हमने अभी तक छुपा रखे थे, मिसरा याद आ रहा कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, तो मैं इस चीज़ में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं 1965 में यहाँ आया था। इट्स हार्ड टू बिलीव कि एक ज़माने में हम भी जवान होते थे, लोगों पर नज़र पड़ती थी, लोगों की नज़र मेरे को पड़ती थी। एक्चुअली ये बात पे मुझे याद आया कि ज़फ़र मुझे मिले जून में, तो बहुत सवाल किया उन्होंने कहा कि हसन नवाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपका सर पे बाल है, तो मैंने कहा तो किस्सा यूँ है, 1968 का वाक़या है। आप जानते हैं हम लोगों की रवायत क्या होती है, ख़ानदान के तरबियत किस अंदाज से होती है। तो मैंने अपने वालिद को एक ख़त मोहतरमी व मुकर्रमी क़िबला व काबा जनाब वालिद साहब दाम ज़िल्लकुम तस्लीम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यहाँ अगर कोई एक जोशीदा जो मुसलमान हो जाए और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो क्या आप उसे अपना बहू बनाना पसंद फरमाएंगे? खाकसार सकता हूँ। उनका जवाब आया, बखुदा सैयद हसन कमाल सर लम्हो बाद दुआ, तुमसे अगर ऐसी हरकत सरजद हुई कि तुम समंदर की उस तरफ, मैं समंदर की इस तरफ, खबरदार गोरखपुर न लाना। मुझे ग्यारह छोड़ देना पड़ा, मैं संजू में स्टूडेंट था, छोड़। ये है हमारा तो इनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ख़वातीन के काफ़ी बड़े अलमबरदार हैं, और आप माशाल्लाह 65 साल से 1965 से आपने ख़वातीन के लिए आपने बहुत काम किया है। जी, तो मर्दों के लिए आपने क्या काम किया? भाई मर्दों के लिए ये किया कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के लिए यहाँ एक्चुअली बुनियाद रखने वालों में अमेरिका में खासा ये तो आपने उन लोगों के लिए किया जो कि थोड़े बहुत तालीमी याफ्ता हैं, जो मुतासिरीन हैं, बीवियान हैं, उनके लिए क्या किया? मुतासिर है, मुतासिरा नहीं, मुतासिर। अब आप ये उर्दू का लफ्ज़ है, जैसे नहीं समझा, जैसे आपने खत लिखा था ना अपने वालिद साहब को, बहुत सारे लोगों ने जरूरत की होगी। मैं 10 साल के बाद यहाँ से गोरखपुर गया। जब एक कज़िन की शादी थी लखनऊ में, वापस आया, मेरी वालदा ने कहा, हसन कमाल मैंने तुम्हारी निस्बत तय कर दी, तुम्हें कुछ कहना? तो मैंने ये पूछा कि पहले मुझसे आप पूछती? हाँ, मैंने अपने अल्फाज दे दिए और आज अपनी बात आप यहाँ मौजूद हैं, तो आपसे तो क्या सवाल करें, क्या आप पसंद के कुछ अशार कलाम सुनाएंगे? बिकॉज शायद कोई मौजूद हो उसका कलाम ना सुना जाए, तो कुछ कलाम से हम मुस्तफ़ीद करेंगे। इरशाद इरशाद आप आए कोई बात करें, आप आए कोई बात करें, मेरे से क्या तवक्कुआ?
आप आए तो कोई बात करे, गैर से क्या तवक्कुआत करे, ये तेरी इनायतें तौबा। वाह क्या बात है, ये तेरी इनायतें तौबा। ये तेरी इनायतें तौबा, दूर रहकर तकल्लुफात करे। क्या बात, वाह वाह। ये तेरी इनायतें तौबा, दूर रहकर तकल्लुफात करे, और कोई अपना नजर नहीं आता, कोई अपना नजर नहीं आता, इससे पैदा ताल्लुकात। कोई अपना नजर नहीं आता, इससे पैदा ताल्लुकात करें। और ये फसाने बहुत पुराने हैं, ये फसाने बहुत पुराने हैं, कुछ तो इनमें तगय्युरात करें। ये फसाने बहुत पुराने हैं, फसाने बहुत पुराने, कुछ तो इनमें तगय्युरात कुछ करें। तो इनमें तगय्युरात करें। और दिल लगी नहीं साहब, दिल लगी नहीं साहब, आप हमसे हंस के बात करें। दिल लगी नहीं साहब, आप हमसे हंस के बात करें। और इश्क दीवानगी में डूब गया, इश्क दीवानगी में डूब गया, आप पैदा नए नुकात करें। आप पैदा नए नुकात करें। और बेनियाजी तेरी माअज़ल्लाह, बेनियाजी तेरी माअज़ल्लाह, किस भरोसे पे ख्वाहिशात सिद्दीकी काकोरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कलाम से हमें मुस्तफ़ीद किया। आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मेरी सैकड़ों की तादाद में, और इंसाइक्लोपीडियाज, तो कौन सी किताब है जो आप ये कहेंगे कि सॉर्ट ऑफ आपकी ज़िंदगी का हासिल है, या आपको बहुत पसंद है, या वो किताब जो आप समझते हैं कि दी बेस्ट है? उसके बारे में कुछ अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। किताबें तो बहुत सी हैं, मगर जो हम कामों पे हमें लगा हमारे दिल के करीब हैं, और जो हमारे हमारे तनकीद मज़ामीन की किताबें, मतलब ये किताब है तनकीद और तनकीस, इस तरीके की किताब है आमाल नामा। तो ये तनकीदी मज़ामीन किताबें हैं, ऐसे मजमूए हैं और चीज़ें हैं। एक आपसे सवाल जी शायद आप माशाल्लाह आप एक लिविंग लेजेंड हैं, यू लाइक इंस्टीट्यूशन, उर्दू की इतनी तसानीफ लिखी हैं आपने। अमेरिका में आप उर्दू का सवाल तो नहीं कर सकता, नशर व फराज के बारे में बताइए। आप कि जब आप आए थे उर्दू की महफिल कैसी होती थी, मुशायरे, और अब उनका क्या हाल है? ये बात तो है कैसी है कि मैंने महसूस किया, अगर आप लोगों को किसी और गलत मालूम न ले तो हम अर्ज कर दें। हमको यहाँ करीब अटलांटा आए हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए। जिस ज़माने में मामा में हाजिर हुए थे यहाँ, उस ज़माने में जो नशिस्तें होती थी या मुशायरे होते थे, उनमें एक वसाइल की बड़ी कमी थी। लोगों के पास पैसा भी नहीं था, और भी चीज़ें थी, कोई इस तरीके का फॉर्म नहीं था। मगर जो शोरा हजरात आते उस ज़माने में आए, वो ऐसे थे कि जो जाने माने या जिनका कोई कंट्रीब्यूशन था, और उनमें बाद साल में तो एक साथ 7, 8, 10
شعرا ایسے ہوتے تھے جو ریفرنسز میں آتے ہیں، جو ہندوستان پاکستان معروف تھے اور جنہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کی ایک اہمیت تھی. اس کے بعد دھیرے دھیرے چیزیں جو ہے کچھ یا تو کہا جائے کہ خوش وقتی کہیے یا کچھ کامرشلائز ہو گیا ہے، کیا ہوا کہ اب فنکشن تو بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر وہ ادبی رکھ رکھاؤ جو ہونا چاہیے وہ بعض وقت بڑا مایوس کرتا ہے. اور ان معنوں مایوس کرتا ہے کہ آپ کسی کو ہندوستان پاکستان سے بلاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مگر وہ شخص جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی ادب یا شاعری کی نمائندگی نہیں کر پاتا. اور لوگ نہیں جانتے ہیں کہ بھائی اچھے برے شعر میں، اچھے برے شاعر میں یہ زندگی، یہ اصل میں شاعری جو ہے وہ ایک علم کی روایت ہے. بغیر علم کے شاعری کی کوئی بات کی بات نہیں. تو یہ مشاعرے یا نشستوں کی جو بات ہوتی ہے اس میں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کتنی میننگ فل ہے. اس میں جو جتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، چاہے اردو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کتنی میننگ فل ہے اور اس میں کتنی تہذاری ہے یا اس کا معیار کیا ہے. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. چاہے وشے ایک طرح ناموضوع ہو، کم سے کم جو الفاظ ہوں، جو کمیونیکیشن ہے وہ اس طریقے سے پریزنٹیبل ہو. تو اب جو شعرا پہلے جو لوگ آتے تھے، اور اب جو مجھے کہنا نہیں چاہیے ممکن حسن خواطہ وغیرہ پورا مانے اس چیز کو، مگر یہ کہ اب جو لوگ بلائے جاتے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جو کسی ریفرنس میں نہیں آتے. ایسا نہیں کہ ہندوستان پاکستان میں شعرا نہیں ہے، بڑی تعداد ہے، مگر یہ کہ ایک تو جو لوگ مشاعرے میں مشاعرہ کے ایک طریقے سے پیشہ ہو گیا ہے، اور مشاعرے کے پہلے بھی پیشہ تھا مگر اب تو بالکل ہی ایسا پیشہ ہو گیا کہ جس میں صرف ایک جیسے کوئی دکان کھول لیتا ہے تو کچھ باہر بڑھتے جاتے ہیں، لوگ اس کیفیت ہو گئی. حسن صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ کہوں ایکچولی دو چیزیں ہیں جو انہوں نے کہی، وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. شعراء حضرات جو مشہور و معروف ہیں ان کی فیس ایک مشاعرے میں کوئی کہنا کہ میں افورڈ لاکھوں میں ان کو ہندوستان میں ملتا ہے، اور میرا خیال ایسے ہی پاکستان میں بھی ان کو پیسہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کا آرگنائزیشن ہے اس کا ایک مقصد ہے اردو زبان کو ہمیں سرو کرنا ہے. تو اب ہمیں نئے نئے شعراء کو اگر ہم نہ لائیں تو پھر کیسے یہ لوگ ابھریں گے. تو اس وجہ سے بلکہ آج ہی میاں عبداللہ ڈاکٹر عبداللہ سے بات ہو رہی تھی، اس میں یہی ہوا کہ بھائی ایک لسٹ بنائیے جو نئے شعراء ہیں، اچھے شعراء ہیں، مگر یہ کہ وہ نامور نہیں ہیں اور ان کو بلایا جائے. تو یہ ایک مقصد ہے ذکی صاحب، جو جس وجہ سے وہ آپ کے بیان پہ تو نہیں اترتے ہیں، مگر کل انشاءاللہ وہ اچھے شعراء ہوں گے. بہت بہت شکریہ. دوشی صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ I was not supposed to be here اور میں ایک جملہ یہاں کہنے کی جرت کر رہی ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اردو دان تو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں لیکن ان میں سے کسی بھی اردو دان نے 100% انکلوڈنگ می صرف اردو میں بات نہیں کی. یہ میں نے آبزرو کیا. اب ہماری کم مائگی کا یہ حال ہے کہ ہماری ایک زبان بھی تو اپنی نہیں. شکریہ. صرف آصف کو نہیں کہا، باقی ہم جانتے ہیں. میں یہ جو آپ دونوں کی ہو رہی تھی آپ دونوں کی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں تو علی گڑھ ایسوسیشن اور بزم ادب کی بہت بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ اس دیار غیر میں رہ کر انہوں نے ایسے ایسے شاعر بلائے. ہو سکتا ہے وہ نام اور ریفرنس والے نہ ہوں، مگر ہم لوگوں نے ایسے ایسے شاعر سنے اور ان لوگوں نے اتنے اچھے پروگرام پیش کیے
कि आई एम रियली थैंकफुल टू दैम। और उससे मेरे बच्चे जो है, जो कि जो है उर्दू से इतने वो नहीं हैं, मगर उन्हें भी, उनको भी रेफरेंस है कि फैज़ अहमद को ये जितने भी शेर आए थे, बहुत, मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हसन अली साहिब की, आपकी भी और आप लोगों की भी, और इनाम की। अगर इजाज़त हो तो एक किस्सा सुना दे। हुमार बारबकवी आए हुए थे, मरहूम सिराज का अतेला के घर रुके थे, तो यहाँ आते थे 4-5 दिन के लिए आते थे। तो मगरिब के मतलब असर के वक्त हम लोग पहुँचे, नमाज पढ़ा, मगरिब की अज़ान भी वहाँ उनके घर में। तो हम लोगों ने कहा कि साहब चलते नमाज, तो मेरी नज़र उन पर पड़ी, हमने उठिए, कहने लगे आप पर तहल्लुक़ नमाज तबलीग से तो नहीं है। और उनकी एक बात ये थी कि उस वक्त टीवी पे येलो पेजेस की एक ऐड आता था, जिसमें वो उंगलियां, वो जो चलते चलते उंगलियां हो जाती थी। तो उन्होंने ये कहा, सही जगह पे आए, गलत वक्त। आप तमाम हज़रात का तहे दिल से मशहूर है। हम लोग कहाँ दुर्शी सुन रही है ना मेरी उर्दू को। और आप लोग तो एक मसले रहा है हमारी कम्युनिटी, क्लब कम्युनिटी का कोई उर्दू में कोई लफ्ज़ है नहीं, हमारी जमात के लिए कह सकते हैं, जमात का लफ्ज़ है शायद भाई। और अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी के लिए सेहत दे, आप लोगों को साया सलामत रखे। आप लोगों के तवज्जुह से आज हम लोग यहाँ बैठेंगे, इतने हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम कर पाते हैं। तो हाज़रीन कराम, अब ये जैसा कि कहा, ये गैर रस्मी पार्ट है खराज तहसील का, जो अब मुकम्मल हुआ, अब तमाम हुआ, और अब हम एक मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता एप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये जो शख्सियतें यहाँ बैठी हैं, ये जाइगेंटिक पर्सनैलिटीज़ हैं, इंग्लिश में, और उर्दू में क्या कहें, अदालत शख्स होती हैं। तो इनकी ज़िंदगी, इन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत सी इनकी खिदमात हैं, और उन सब बातों को, उन सब चीज़ों को, उन सब फैक्टर्स को, उन सब को जमा करके और चंद लम्हों में उसको बयान करना मुमकिन ही नहीं है। इसके लिए तो कंट्रोल चाहिए कि हम उसमें बता सकें कि उन्होंने क्या क्या किया। ये तो हमारे लिए बड़ा मसला था। तो इस मसले का हल कुछ इस तरह हुआ कि हमारी दरख्वास्त है, हमने हमारे मोहम्मद इनाम साहब से रुजू किया, और उन्होंने इस मसले को कुछ इस तरह हल किया कि उनका खराज तहसील मुनज़्ज़म तरीके से 3 नज़्मों के अंदर मंजूर किया। अच्छा नहीं लगा आपको वर्ड पे? बहुत अच्छा लगा। सो यानी कि बाज़ाब्ता तौर पे, यानी कि फॉर्मल वे में उन्होंने इनका जिक्र किया है, और कुछ इस तरह से किया है कि गोया ज़िंदगी भर का इनका जो अचीवमेंट्स हैं, जो इनकी खिदमत हैं, उसको, जो कि एक समंदर की मानक है, इतनी वसी है, उसको एक दूसरे के अंदर, और वो इनकी वो 3 नज़में आपके आगे पेश करेंगे। वो 3 नज़में वो आपके आगे पेश करेंगे, और उन नज़मों के अंदर न सिर्फ ये कि उनकी शख्सियत का निचोड़ है, और उसके साथ साथ हमारे आजिज़ाना, यानी कि हमदिल और मौदबाना जज्बात की अक्कासी भी होती है। तो आप ये सुनिए, उसके लिए मैं इमामुल्लाह को दावत दूँगी, और उसके साथ साथ मैं जनाब मसरत साहब को भी कहूँगी कि वो भी स्टेज पे आएँ। और नहीं, आप अगर नीचे नहीं, आप तशरीफ रखिए, मसरत साहब तशरीफ लाएँ, ताकि हम फॉर्मल थैंक यू सो मच फरजाना। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो मैंने कहा कि बज़्म का सफ़र है ये पूरा, और इनाम भाई ने इसको मंजूम उसमें पेश कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी जो बज़्म के जो लोग हैं वो प्लीज़ यहाँ पर, मैं नाम लूँगी, आप लोग यहाँ आइए, ताकि आप सबकी शिरकत से ये महफिल, मतलब
अपने एहतमाम के साथ मुनक़िद हो। मैं बुलाऊंगी ताहिर सलीम साहब को, प्लीज़ आप यहाँ पे तशरीफ़ लाइए। शाहिद भाई प्लीज़ आप आइए। दुर्शी आपा प्लीज़, ये वो 22 साल से वो लोग हैं जो इस मशल को जलाए हुए। दुर्शी आपा प्लीज़ कम हियर, तशरीफ़ लाइए, आपने टोक दिया। और आप लोग प्लीज़ आइए। वसीम भाई, रुखसाना, वसीम भाई प्लीज़ आप लोग आइए, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये महफिल पूरी नहीं हो सकेगी। थैंक यू। बड़ी ख्वाहिश है ये कि अगर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही या थ्री सारे पढ़ा आपसे सवाल कि ये महफिल जो है ये जो ग्रुप यहाँ पर बना है ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा अगर वाहिद भाई और तलत आपा भी यहाँ पर आकर शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम। ये खिराज तहसीन नज़मिया इन तीनों मोहतरम हस्तियों के नाम। सबसे पहले मोहतरमा तहमीना जैदी। मेरी कोशिश ये है कि 6 अशार में इनकी शख्सियत का एक जायज़ा लेके आपके सामने पेश कर सकूँ। बैठ जाइए आप। बैठ जाइए। एक चमकता सा नगीना है कि तहमीना है। ये आवाज नहीं पहुंची आपके पास। एक चमकता सा नगीना है कि तहमीना है, इल्म व तहजीब व करीना है कि तहमीना है। जिनसे सीखा है नई नस्ल ने जीने का चलन, जिनसे सीखा है नई नस्ल ने जीने का चलन, एक उर्दू का सफीना है कि तहमीना है। देखिए डॉक्टर जकी काकोरवीज के साथ कुछ वक्त गुजारा है मैंने। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बाहर से अच्छे शोरा आते ना हो आपके शहर में जरूर मौजूद है। कोई फिर से कि जिनसे सीखा है नई नस्ल ने जीने का चलन, एक उर्दू का सफीना है कि तहमीना है। कोई सानी है कहाँ उनकी मिलनसारी का, अपने खित्ते से सखावत से वफादारी का। बाद में कितने घने पेड़ उगे हैं लेकिन आपने ही किया आगाज शजरकारी का। इल्म जी मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कोई सानी है कहाँ उनकी मिलनसारी का, अपने खित्ते से सखाफत से वफादारी का। बाद में कितने घने पेड़ उगे हैं लेकिन आपने ही किया आगाज शजरकारी का। इल्म व आदाब है क्या, महरो मुरव्वत क्या है। इल्म व आदाब है क्या, महरो मुरव्वत क्या है।
آپ سے سیکھ لے کوئی کہ ثقافت کیا ہے، علم و آداب ہے کیا، مہر و مروت کیا ہے، آپ سے سیکھ لے کوئی کہ ثقافت کیا ہے، مرکز علم و ہنر ہیں وہ مینار نور، شعر میں کیسے کہوں ان کی حقیقت کیا ہے۔ محترم جناب، آپ کو پسند آیا؟ شکریہ ہم آپ کا ادا کریں، آپ کو کسی کا لوگ بیٹھے ہیں پریشان۔ حسن کمال صاحب سے جتنی محبت ہے وہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ ایک خاص طریقے سے گفتگو کرنا جو ہے میں نے انہیں سے سیکھا۔ ایک دفعہ یہ پاکستان گئے تھے، وہاں پر ایک شخص پھل بیچ رہا تھا، انہوں نے پوچھا میاں عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ اس نے کہا صاحب مجھے نہیں پتا، میں تو کیلے بیچتا ہوں۔ جب تک حسن بھائی کے لیے کم سے کم کوئی ہنسانے کی بات نہ ہو، بات مکمل نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت خراج تحسین ان کے خراج تحسین محترم جناب حسن کمال صاحب، نام ان کا ہی نہیں کام بھی ان کا ہے کمال، خدمت خلق میں دے سکتے ہیں ہم ان کی مثال، کوئی مشکل ہو یہ ان کے لیے آسانی ہے، کھینچ لاتے ہیں وہ دریاؤں سے کشتی کو نکال، گفتگو کیسی حسین اور وہ لہجے کی مٹھاس، لب پہ مسکان سجائے ہوئے دل میں احساس، ایک نعمت ہے ہمارے لیے ہونا ان کا، سنگ ریزوں کے جہاں میں ہے وہ تنہا الماس، کوئی بھی غم ہو سدا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مشکل ہو یہ اس سے لڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی غم ہو سدا ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کوئی مشکل بھی ہو یہ اس سے لڑے ہوتے ہیں، کام ان کا ہے ہر ایک زخم پہ مرہم رکھنا، ہیں یہی لوگ جو دنیا میں بڑے ہوتے ہیں۔ وہی لوگ جو دنیا میں بڑے ہیں۔ سے آخر میں خراج تحسین محترم جناب ڈاکٹر ذکی کاکڑوی صاحب، چند لوگوں سے فضا میں وہ اثر ہوتا ہے، چند لوگوں سے فضا میں وہ اثر ہوتا ہے، دھوپ میں جیسے گھنا کوئی شجر ہوتا ہے، چند لوگوں سے فضا میں وہ اثر ہوتا ہے، دھوپ میں جیسے گھنا کوئی شجر ہوتا ہے، ان کی کوشش سے ہی پھیلی ہے ہوا میں خوشبو، شاخ اردو پہ محبت کا ثمر ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بلال بھائی، چند لوگوں سے فضا میں وہ اثر ہوتا ہے، دھوپ میں جیسے گھنا کوئی شجر ہوتا ہے، ان کی کوشش سے ہی پھیلی ہے ہوا میں خوشبو، شاخ اردو پہ محبت کا ثمر ہوتا ہے، ان سے میں نے ادب و آداب کا ڈھب سیکھا ہے، ان سے میں نے ادب و آداب کا ڈھب سیکھا ہے، زندگی سیکھی ہے اور اردو ادب سیکھا ہے، علم کا ایک سمندر ہے کتابیں ان کی، جو بھی سیکھا ہے یہ انہی کے سبب سیکھا ہے،
ڈاکٹر صاحب عرض کیا ہے کہ تیشہ حرف لیے صورت فرحاد ہے وہ، نام ان کا ہے ذکی اردو کے نقاد ہے وہ، تیشہ حرف لیے صورت فرحاد ہے وہ، نام ان کا ہے ذکی اردو کے نقاد ہے وہ، زندگی علم کی خدمت میں بسر کرتے رہے، ایک میں ہی نہیں استادوں کے استاد ہے وہ۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کی یہ اتنا لوگی کہ ایک عمر گزاری ہے اس دشت کی سیاحی میں۔ آپ لوگ ہیں تو ہم سب یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اس کے ساتھ میں ذکی صاحب کا اناؤنسمنٹ کر دوں کہ ذکی صاحب کی کچھ کتابیں یہاں موجود ہیں، تو آپ لوگ پلیز وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک بحر بے قرار کی طرح ہیں۔ اگر آپ کو اردو ادب کا، اردو کا ذرا بھی شوق ہے تو وہ ضرور پڑھیے گا۔ آپ یقین جانیے آپ کو ان کی عظمت کا، ان کے فن کا، ان کی قابلیت کا اندازہ اس وقت ہوگا۔ چلیے ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے۔ ایک بات اور جو بہت اہم تھی، جو جس کا ذکر رہ گیا، کہ بزم ادب نے جتنے ادبی پروگرام تو کیے، ہم نے شام فیض، فراز، قطیر شفائی، ہر طرح کا پروگرام کیا۔ سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے یہاں پہ بزم ادب کی وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور حسن بھائی آپ کی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے ہم یہاں پہ 6 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو، تو یہ ایک بہت بڑی بزم ادب کی اچیومنٹ ہے۔ حسن بھائی بہت شکریہ اس کا۔ انہوں نے لکھا اور لوگ تیار ہیں وہاں کے اوپر۔ میں نے فورمن صاحب کو ان کو لکھا، جانتھن صاحب کو، کہ بھائی یہ ہے خط، آپ ہمارے لیے کچھ کیجیے۔ ان کا ایک خط آیا ہوا جو میں نے آپ کو کافی بھیجی ہے، تو مگر یہ ہے کہ اس ٹریننگ کے لیے ٹوفل اور جی آر ای کے لیے تقریباً $1500 لگتا ہے پر بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے۔ ایک اور اناؤنسمنٹ، اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایم سی ہیں تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بول رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ زہر بھی آپ ہی لگ رہے ہوتے ہیں بولتے ہوئے، رائٹ؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہر چیز کو لے کے قاعدے سے چلنا ہے۔ میں نے میری ابھی نظر پڑی کہ مشیر بھائی یہاں بیٹھے ہیں۔ مشیر بھائی کہاں گئے؟ مشیر بھائی پلیز آگے تشریف لائیے۔ مشیر بھائی پلیز آگے تشریف لائیے۔ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں بہت معذرت۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ انگریزی نہیں بول سکتے، میں یہ کہوں گی کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ تو ایک اور چھوٹا سا اناؤنسمنٹ، ہمارا 30 اکتوبر، ابھی سے سن لیجئے، کوئی شادی، کوئی عقیقہ، کوئی ولیمہ نہیں ہوگا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایک اور یہ ڈاکٹر کی زبان ہے، اوکے؟ 30 اکتوبر سیٹرڈے اکتوبر 30 کو اٹلانٹا شہر میں براڈ وے کوالٹی کا ایک اردو پلے آ رہا ہے۔ پلیز ڈونٹ مس دیٹ پلے، کیونکہ یہ ایک تو جس جگہ وہ ہو رہا ہے، ایگل تھیٹر جو ہے شوگر ہل میں، ون آف دا بیسٹ تھیٹر ان ساؤتھ ایسٹ، تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ ون آف دا بیسٹ تھیٹر جو بک کیا گیا ہے۔ طلعت آپا خدا حافظ، شادی میں جانا ہے طلعت آپا کو، اللہ حافظ، سلام کیجیے گا ہمارا۔ اور اس میں ہمارے جو رائٹر، پروڈیوسر، ایکٹر سارے لوکل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کو سپروائز کیا ہے ہمارے انور مقصود صاحب نے، تو ابھی سے تالیاں بجا دیجیے، کیونکہ اس ڈرامے میں بے انتہا محنت ہو رہی ہے، اور یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر حالات نے اجازت دی اور اگر انور بھائی کی طبیعت بہتر رہی اور وہ سفر کے قابل رہے تو وہ خود یہ ڈرامہ دیکھنے ضرور آئیں گے۔ 30 اکتوبر کوئی پروگرام شہر میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں وہ بلال بھائی کا اٹلانٹا والے کو پیچھے لگا دوں گی۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں ہماری جی۔ بہت سارے چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں بہت دنوں کے بعد، تو میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر فیروز یوسف جی اور پروین یوسف جی کا، جو بہت دنوں بعد یہاں نظر آئے ہیں، اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گی کہ تھرو آؤٹ ہماری جو بھی ادبی محفلیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کی آج سے 20 سال پہلے سے جو شروع ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں، بہت دور سے آتے ہیں، وہ ساؤتھ میں رہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو
they make an effort and they come here. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और बहुत खुशी हुई आपको देख के. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. चलिए प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं. अब मैं दावत दूंगी हमारे यहाँ की एक और बहुत ही अच्छी और प्यारी सी शख्सियत, जिन्होंने अभी अभी बज़्म को थोड़े दिनों पहले ज्वाइन किया है. वो उर्दू बोलने की बहुत अच्छी कोशिश करती हैं. उनके वालिद बहुत बड़े शायर थे, हैदराबाद दक्कन के, तालिब खुंदमरी. मैं आफरीन को दावत दूंगी को यहाँ आकर कुछ अपने वालिद का कलाम पेश करें. आफरीन खुंदमरी. आफरीन ने अपनी खुद की एक पहचान बनाई है यहाँ पे सोशल वर्कर की हैसियत से. Thank you, Sada Papa and Inam Uncle and Bazme Adab Atlanta for giving me this platform to carry my father's legacy. आज मैं अपने वालिद मरहूम सैयद तालिब खुंदमरी की नज़्म आप सबके सामने आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी. उन्वान है इब्लीस का एतराफ़. उन्वान है इब्लीस का एतराफ़. तूने जिस वक्त ये इंसान बनाया या रब, तूने जिस वक्त ये इंसान बनाया या रब, उस घड़ी मुझको तो एक आँख ना भाया या रब. इसलिए मैंने सर अपना ना झुकाया या रब, लेकिन अब पलटी है कुछ ऐसी ही काया या रब. अक्लमंदी है इसी में कि अब तौबा कर लूँ, सोचता हूँ कि अब इंसान को सजदा कर लूँ, सोचता हूँ कि अब इंसान को सजदा कर लूँ. बंद है इब्तिदान थी बड़ी नर्म तबीयत इसकी, कल वो जान पाक थे शफ़ाफ की तीनत इसकी. फिर बदतरीज बदलने लगी खसलत इसकी, अब तो खुद मुझ पे मुसल्लत है शरारत इसकी. इससे पहले कि मैं अपना ही तमाशा कर लूँ, सोचता हूँ कि अब इंसान को सजदा कर लूँ. जो ख़वातीन और हज़रात माशाल्लाह कमरे के पिछली तरफ मौजूद हैं, चाय और समोसों के करीब, उनसे बहुत बहुत माज़रत कि आप लोगों की अहम गुफ्तगू के दरमियान ये स्टेज पर कुछ कार्रवाई हो रही है. तो अगर आप लोग इजाज़त दें, जब भी जितना वक्त लेना चाहें ले लें, जब फारिग हो जाए बता दें, तो फिर सदा फारूकी दोबारा प्रोग्राम को शुरू कर दें. जरूरी नहीं है प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना, अगर आप लोग की बातों में दखल होता है. नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते. ये है आफरीन के लिए. जितनी खूबसूरती से वो यहाँ अपने वालिद का कलाम पढ़ के गई हैं कि वाकई कोई खेल नहीं है उर्दू बोलना. उर्दू आफरीन की ज़बान नहीं है, फिर भी अपने वालिद की मोहब्बत में, उर्दू की मोहब्बत में ये हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर पढ़ के जाती हैं. तो भरपूर तालियाँ आफरीन के लिए. तो चलिए हम आगे महफिल को लेके चलते हैं. अब मैं दावत दूंगी हमारे शहर की आप सब जानते हैं जानी पहचानी शख्सियत इमराना निश्तर साहिबा को कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें. ऐ नादान इंसान, तूने अपने दिल को क्यों ऐसा बुतखाना बना रखा है, जहाँ नफरत, अदावत, हैवानियत, रकाबत, खसासत, खबासत, जहालत, एहानत के लातादाद बुतों को सजा रखा है. भूल कर खुदा की जात को, देकर खुदी को मात, दिल में बैठी नफ्से अमारा हिर्स व हविस का थाल सजाए, ख्वाहिशात के दीप जलाए, दिन रात इन बुतों की परस्तिश में लगी रहती है. इतने खूबसूरत मजमून पे सिर्फ ये कहूँगी, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बां आती है. और ये शेर मैं बुशरा की नज़र करती हूँ, उनके वालिद रबिश सिद्दीकी साहब का है, और मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे वो ज़रूर याद आ जाती हैं. तो खैर बात करते हैं दास्तान गोई की, क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा कम रह गया है और हमें इसमें बैतबाजी भी निपटानी है और कुछ बड़े शोरा हजरात यहाँ मौजूद हैं, उनका कलाम भी सुनना है. तो दास्तान गोई क्या है? दास्तान अमीर हमजा, किस्सा शहार दरवेश, बाबो बहार, ये वो उर्दू अदब की चीज़ें हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान को, उर्दू तहजीब को, उर्दू अदब को ज़िंदा रखा है. और जो दास्तानें पढ़ते थे उनको दास्तान गो कहा जाता था. तो हमारे दरमियान भी आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है
बहुत ही काबिल हस्ती। जब वो ये पढ़ के जाएंगे मजीद इंट्रोडक्शन में उसके बाद दूंगी। मैं दावत दूंगी शाहिद अली को कि वो यहाँ आकर असमत चुगताई का लिखा हुआ अमर बेल आपके सामने पेश करें। इसमें चुगताई की कहानी अमर बेल। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान में शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन तजवीज़ की जाने लगी। सलीम भाई याद आ रहे हैं? उठते बैठते दुल्हन तजवीज़ की जाने लगी। जब कभी बीवियां खाने पीने से निपटकर बेटों की बड़ी या बेटियों का जहेज काटने के लिए बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगी। अरे ये अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेगी? ओ भी घास तो नहीं खा गई हो? कनीज फातिमा की सास से सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही बहू के कुंडल डालकर बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम बाहर निकाल दिया। अरे सजन मैया को क्या कवारी नहीं मिलेगी जो झूठ पित्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा कर देने को तैयार हैं, 40 के तो लगते भी नहीं। उरी बुआ खुदा खैर करे पूरे 10 साल निकल रही हो। अल्लाह बख्शे खाली का महीने मिला के पूरे 50 भर के। अच्छा आप तालियां बजा सकते हैं? अल्लाह बेचारी इम्तियाजी को बोलकर पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाल्लाह से 5 बहनों की ज़बानें बस कंधों पर पड़ी थी। ये गजबत भर की। कोई मुचैटा हो जाता तो 5 मोर्चा बांध कर उसके खिलाफ डट जाते। फिर मजाल है कोई मुगलानी या पठानी तक मैदान में टिक जाए। शेखानियों और जैदानियों की तो बात ही छोड़ें, अच्छी अच्छी दिल गुर्दे वालियों की छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाजी भुक्को भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़े। उनका सबसे खतरनाक हरदा उनकी चिनचिनाती हुई बर्मे की नोक सी आवाज थी। बोलना जो शुरू करती तो मालूम होता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान में घुसती और दूसरे कान से जंग से निकल जाती। जब कभी उनकी किसी से तकरार शुरू होती सारे मोहल्ले में तुरंत खबर फैल जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ के चल निकली है। और बीवियां कोठे लांगती, छज्जे फैलांगती, दंगल की जानिब हल्ला बोलती। मगर आज इन 5 बहनों ने मिलकर बेचारी इम्तियाजी बुआ की वो टांग ली कि बेचारी नक्को बन गई। उनकी संजली बेटी गोरी खानम अभी तक कंवारी धरी थी, 36वां सा साल छाती पर सवार था और नसीबा खुलने के आसार नजर नहीं आते। कंवारे मिलते नहीं, ब्याह रंडवे नहीं होते। पहले जमाने में तो हर मर्द 3-4 औरतों को ठिकाने लगा देता था। मगर जब से ये कमबख्त अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए बीवियों ने ना मरने की कसम खाई। मगर आज शुजात मामू की उम्र का मसला भी बड़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि कमर आगा और नूर खाला के लिए तो वो बिल्कुल लड़का ही थे। इसलिए मारे हॉल के वो बरसों की गिनती में बार बार घबरा डाल देते, क्योंकि मामू की उम्र का पता लगने से खुद खालाओं की उम्र पे शय बढ़ती थी। मतलब शुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे। यहाँ सुथरा नक्शा, चेहरा बदन, दरमियाना कद, यूं समझ ली मेरी बात। उम्र भी आई थी। जब उन पर पैगामात की बहुत बारिश हुई तो उन्होंने सारा मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। बस इतना कहा कि भाई देखो लौंडिया इतनी छिछोरी ना हो कि मेरी बेटी लगे और इतनी बुद्धि भी ना हो कि मेरी अम्मा लगे। बड़ी धूल मची और आखिरकार खुर्रा रुखसाना बेगम के नाम पर। और रुखसाना बेगम थी कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने जमीन पर उतारा। शक्ल देके जाओ मगर जीना भरे, तोलो तो 5वें के बाद छठा फूल न चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिसमें हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चिपक दिया। निस्वानियत इस गजब की कि दर्जन भर औरतों का सब निचोड़ कर डाल दिया। गरम गरम लपटे से उठती थी तौबा इस्तग़फ़ार। बकौल इम्तियाजी भुक्को के 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया,
सबसे बढ़कर ये कि निहायत मुफलिस घर का होश थी, दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब मामू उनको ब्याह के घर लाए तो उनको करीब से देख के मामू के तो पसीने छूट गए। ए बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है। ए मियां, तेल देखो, तेल की धार देखो, मर्द साठा और पाठा, बीवी बीसी और कीसी, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी गले उतर जाएगी। मैं तो कहूँ कुछ ही अरसे में बिल्कुल बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएगी। बहनों ने समझाया और मामू समझ गया। जल्दी रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। अच्छे खाने, कपड़े और आशिक़े ज़ार मियां ने 2-3 साल में वो जादू फेरा कि पहली का चांद चौधरी का महताब हो गया। और से शुआएं फूटने लगी, देखने वालों की आंखें झपक कर रह जाती। ये तो शुक्र है मामू की जल्द पेंशन शुरू होने वाली थी, वरना रोज रोज के दफ्तर के होते जरूर रन होते। अच्छा, बहनों के ले देकर एक ही भैया थे। हाय हाय, कैसा बागो बहार सा भाई, पलक झपकते में खुर्रे बांध की तरह बेरहम हो गया। ए भाभी, ये क्या भैया को हर आंचल से लगाए रहती हो? मर्द ज्यादा है, कोई झड़ला नहीं, जो कूले से लगाए बैठी हो। लाख लाख ताले दिए जाते, मगर बीवी है कि खीकी हंस रही हैं, और मियाँ है कि काट के उल्लू की तरह घिराए जाते। अरे भाई, अपनी जोड़ू है, कोई पड़ोसी की नहीं, क्या टके जा रहे हो नजर बट्टू की तरह? बस जनाब, मामू वो मामू ही ना रहे, बस बेगम तिगली का नाच नचा रही है और वो नाच रही है। अच्छा, मामू की जगह जब बहनों को ये समझ ना आया कि किसी तरह भैया मानते नहीं, तो उन्होंने सारा का सारा इल्जाम कुमारी के सर दे दिया। अच्छा भाई, कुछ ही अरसे में अगर 2-3 बच्चे हो गए तो सारे की सारा दुल्हनापा उतर जाएगा। भाई कभी ना कभी तो भैया का दिल भरेगा ही। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मुमानी का पैर भारी हुआ तो ना उल्टियां ना तबीयत भारी। मजाल है जो जरा बराबर भी हरकत आ जाए, चेहरे पर और 4 चांद खिला, जापे के बाद झट से खड़ी हो गई। मजाल है जो कमर बाल बराबर भी मोटी हुई हो। मामू का तो बस नहीं चलता, उनको उठाकर आंखों में सजा ले, दिल निकालकर कदमों में डाले देते हैं। जी से उतरने की जगह वो तो दिमाग पर भी सवार हो गई। जापे के बाद झट से खड़ी हो गई। मजाल है जो कमर बाल बराबर भी मोटी हुई है। हाँ, मामू की जगह, मुमानी की जगह मामू जरा झटक गए, यूं बच्चा उन्होंने पैदा किया हो। थोड़ी सी तोड़ ढलक आई, गालों में लंबी लंबी काशे गहरी हो गई, बाल पहले से ज्यादा सफेद। और 2 साल बाद जब बेटी पैदा हुई तो तोड़ और आगे ढलक आई, आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली दाढ़ का दर्द जब काबू से बाहर हुआ तो आखिर निकलवाना पड़ा, और साहब एक ईंट खिसकी तो इमारत की सारी चूल्हे ढली हो गई। उसमें रुखसाना मुमानी की अकल दाढ़ निकल रही थी। खैर, मामू की बत्ती सी उनके असली दांतों से बेहतर साबित हुई। नजले का इल्जाम, उम्र का इल्जाम नजले पर गया, और रुखसाना मुमानी का वही हुस्न और कमसिनी जिसने मामू को अपना दीवाना बना रखा था, अब उनकी आंख में खटकने लगा। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ दौड़ नहीं पाता तो चिढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर। मुमानी मामू के साथ दगा कर, कभी कभी तो उनको लड़कियों की तरह दौड़ता भागता देखकर मामू के दिल में टीसे उठते हैं, वो जलकर कोयला हो जाते। हाँ हाँ, लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन कर चलती हो, जहर उगलने लगते। हाँ हाँ, अपने लिए कोई जवान पट्टा ढूंढो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देते, फिर जेब पर गुलदार हो जाते, जिस पर मामू और चिरागता होता, और वो भारी भारी इल्जाम लगाते कि खुदा की। मुमानी की आंखों से मोटे मोटे आंसू जारी हो गए, वो सन्नाटे में रह जाते। मामू का तो जैसे कलेजा कट जाता, वो उनके कदमों में नाक रगड़ते रोने लगते, मैं कमीना हूँ, हरामजादा हूँ, ये जूती लो और जूती चाय मारो, मेरी जान, मेरी रुखी, मलका शहजादी। मुमानी अपनी रुपैली बाहें उनके गले में डालकर धूप रोती, तुम्हारा आशिक ज़ार हो मेरी जान, रश के असर से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो जी करता साले का गला घोट दूं। मुमानी झट से माफ कर दी और
इतना माफ कर देती कि मामू की आंखों के नीचे हल्के और गहरे हो जाते और वो थके हुए खच्चर की तरह हाफा करते। फिर साहब 2 दिन भी आ गए, मामू मुआफी भी ना मांगे। वो कई दिन बीमार पड़े रहे। एक बेल होती है अमर बेल, हरे हरे सपोलिए जैसे डंठल, इसकी जड़ नहीं होती। ये बेल अगर किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दी जाए तो ये उस पेड़ का रस चूसकर फलती फूलती है। तो जो ये बेल फैलती है इसी तरह से वो दरख्त सूखता जाता है। तो जैसे जैसे रुखसाना मुमानी के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। फिर मामू ने मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए टिप्पे ईमानी के तमाम माजून तेल और पुश्ते इस्तेमाल करते। भाई थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई, बागपन लौट आया। मगर मुमानी बेचारी दुनिया के दाव पेच तो सीखी ना थी, खुदरा पौधा थी, कभी किसी ने बारीकियां समझाई नहीं। 28 बरस की थी मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बेकार और अल्लड़पन। भाई मोटर ज्यादा चलाओ तो इंजन जल जाता है। यही हाल मामू का हुआ। दवाओं का रद्द अमल जो शुरू हुआ तो वो एक साथ ढह गए। अगर वो 60 साल की उम्र में अपने दिमाग और जिस्म को इस तरह ना थकाते तो इस तरह लुटिया ना दी। अब वो अपनी उम्र से कई ज्यादा बुरे लगने लगे। ए भाभी, ये क्या लड़की बाजू की तरह शलवार कमीज पहनती हो? भारी भरकम कपड़े पहना करो ताकि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टका हुआ दुपट्टा और गरारा पहनना शुरू कर दिया। हाँ, किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है। मुमानी बेचारी कपड़ों से भी खौफ खा रही। ए भाभी, ये क्या एक वक्त की नमाज पढ़ती हो? 5 वक्ता नमाज की आदत डालो। मुमानी ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब से मामू की नींद कमजोर और नखरीली हुई थी, ताजुब के वक्त से जागते रहे। हाँ, मेरे मरने के नफिल पढ़ रही हो। बाजे भतीजों के बाद जिन्हों और फरिश्तों को बरगला रही हो। चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू कर ली है, जादू की बोटियां मंगा के खाती हो। बस जनाब, मामू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही। अमर बेल दिन दुगनी रात चौगनी फैलती रही। बर पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियां झूल गई, पत्ते झड़ गए और बेल पास के सरसब्ज पेड़ पर रह गई। हाय हाय हाय, क्या जासूस समा था। मामू की मैयत बनी सवरी सहन में रखी थी और बहनें खड़ी पछाड़े खा रही और मुमानी सबसे अलग थलग दीवार से सर लगाए बैठी थी। कहने वाले कहते हैं ऐसी हसीन और सोगवार बेवा पहले कभी नहीं देखी। सफेद कपड़ों में वो अजब पुरस्कार ख्वाब सा लग रही है। आंखें रो रो कर बोझल और मखमूर हो रही थी। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह था। वो बच्चों को अपने पहलू में लिए बैठी थी और उनकी बड़ी बहन लगी। यूं मालूम होता था जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपने बेमिसल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा। मामू के लिए दुआ मग़फ़िरत। रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। लेकिन आज जिस तरह शाहिद ने दास्तान गोई के जरिए इस उर्दू के फन को जिंदा किया है, ये शेर व अदब की महफिलें, ये दास्तान गोई, ये सारी चीजें हमको मिटा सके ये जमाने में तब नहीं। तो उर्दू का जादू, उर्दू की खूबसूरती आप लोगों के तवस्सुल से इसी तरह कायम और दायम रहेगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अब मैं दावत दूंगी हमारी बज़्म के अब एक और नए मेंबर, जो हम बहुत खुश हैं कि वो आए हैं और अगली चाय वही बनाएंगे। हम बेशुमार अगली दफा तफल्लुस बदल के चाय वाला रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मेरी खुशकिस्मती के अदब के इन काबिला सितारों के एजाज़ में जो महफिल हुई वहाँ पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। तो कुछ 1-2 गज़लें एक नज़म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हाजतों का जबल नहीं होता, हाजतों का जबल नहीं होता, हमको खौफे अजल नहीं होता। ऐसे बेहिस तो हम न थे पहले, ऐसे बेहिस तो हम न थे पहले, दर्द क्यों आजकल नहीं होता। ऐसे बेहिस तो हम न थे पहले,
درد کیوں آج کل نہیں ہوتا، آب خنجر بڑھا ہی دے یارب، آب خنجر بڑھا ہی دے یارب، دست قاتل تو شل نہیں ہوتا۔ یوں نہیں ہے کہ بے اثر ہے دعا، یوں نہیں ہے کہ بے اثر ہے دعا، آدمی باعمل نہیں ہوتا۔ یوں نہیں ہے کہ بے اثر ہے دعا، آدمی باعمل نہیں ہوتا۔ صبح سے شام ہو تو جاتی ہے، صبح سے شام ہو تو جاتی ہے، چین کا ایک پل نہیں ہوتا۔ اور رام بھائی یہ شعر سنیے گا کہ خاک ہوتی ہے جن جبینوں پر، خاک ہوتی ہے جن جبینوں پر، ان جبینوں پہ بل نہیں ہوتا۔ خاک ہوتی ہے جن جبینوں پر، ان جبینوں پہ بل نہیں ہوتا۔ اور مقطع حاضر ہے کہ آپ فاروق بھول جاتے ہیں، آپ فاروق بھول جاتے ہیں، کچھ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ علم کہاں گرا دیا، علم ذرا اٹھائیے، علم کہاں گرا دیا، علم ذرا اٹھائیے، طبل ابھی بجا نہیں، ابھی کہیں نہ جائیے۔ کچل کے خار زار کو زمین داغدار کو، کچل کے خار زار کو زمین داغدار کو، قدم بڑھائیے ذرا، ذرا قدم بڑھائیے۔ جو دشت میں سراب ہیں رہین آفتاب ہیں، جو دشت میں سراب ہیں رہین آفتاب ہیں، جو ہو سکے تو چاند کے ہنر کو آزمائیے۔ بہت شکریہ۔ گرے ہیں جور و جبر کے تمام بت زمین پر، گرے ہیں جور و جبر کے تمام بت زمین پر، انہی کی خاک سے کوئی نیا حرم اٹھائیے۔ اور سکوت انتظار میں فضائے بے قرار میں، سکوت انتظار میں فضائے بے قرار میں، کہے ہیں ہم نے شعر کچھ مگر کسے سنائیے۔ بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی نظم کی اجازت چاہوں گا۔ یہ نظم پچھلے سال جب یہ لاک ڈاؤن وغیرہ شروع ہوا تھا تو اس میں کچھ تخیل میں کہیں گرتے ہیں جب آواز کے جھرنے، تجھے اے شاعری ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں بیت بازی کی۔ بیت بازی کا جب دور شروع ہوا، جس زمانے میں بیت بازی شروع ہوئی، اس وقت گلی محلوں میں ٹولیوں کی صورت میں لڑکے بیٹھ کے بیت بازی کیا کرتے تھے حروف تہجی میں۔ بڑھتے بڑھتے اس کی شہرت شاہی محلوں تک پہنچی اور مغل دربار میں بیت بازی کے مقابلے منعقد کیے جانے لگے۔ سنتے ہیں کہ ملکہ نور جہاں کو بیت بازی میں ملکہ حاصل تھی، اور تقسیم ہند کے بعد بیت بازی کے مقابلے بھی پاکستان۔ اور وسیم بھائی، اور وسیم میں چلے گئے، شادی میں جانا تھا شاید ان لوگوں کو، اور کوئی اگر کوئی بھی اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو پلیز، سوری پلیز آئیے، تشریف لائیے۔ اس کا اوپن پوائنٹ، جب آخری دفعہ ہم نے بیت بازی کا مقابلہ کیا تھا تو تحمیدہ باجی کی والدہ نے اس میں شرکت کی تھی اور انعام جیت کے گئی تھی۔ فاروق آپ پلیز دو چار اس کے جی، یہ میں اس مقابلے کے کچھ جو قواعد ہیں ان کا ذکر کر دوں کہ شعر پڑھنے کے لیے 5 سیکنڈز کا وقت دیا جائے گا، اور ہر پارٹیسپینٹ کو، یہ ٹیمز نہیں ہوں گی، یہ انفرادی طور پہ ہوگا، تو ہر شخص کو جس حد پہ شعر ختم کریں گے اس اگلے شخص کو اسی حد سے شعر پڑھنا ہوگا۔ صرف مستند شعراء کے اشعار پڑھے جائیں گے، یعنی میرے نام استعمال کیجیے گا جو سنیں۔ صرف اردو زبان کے معیاری اشعار پڑھنے کی اجازت ہوگی، فی البدیہہ شعر کہنے کی اجازت نہیں ہے، شعر دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک شعر میں 2 مصرع پڑھنے کی اجازت ہے، مسلسل 3 مرتبہ سے زیادہ ایک حرف پہ شعر ختم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نتائج کا فیصلہ شعر کے وزن، ادائیگی اور تلفظ پہ ہوگا، اور منصفین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ چلیے ہم اس طرف سے شروع کرتے ہیں۔ فرح صاحب آپ سے وہ ادھر سے آپ کی طرف پاس کریں، چلیں جہاں سے شروع کر لیں وہاں سے جی شروع کیجیے۔ یقین موقل محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے،
ایک پھر سے پڑھیے آپ, ایک لفظ بھول گئی بیچ میں. یقین محکم عمل محبت عمل جہاد زندگی میں شمشیر نون نون چلے جی شمشیر نون سے شروع کیجیے. نالے بلبل کے سنو اور ہمدن گوش رہو, ہم نوا میں کوئی گلبو کے خاموش رہو. واہ 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 رہوں نون. پاس کرتے ہیں آپ یہاں سے نون سے. تو آپ بھائی جن کو شعر یاد ہے کثرت سے برائے مہربانی آ جائیں اسٹیج. یہ تو پبلک سے یہاں سے بول سکتے ہیں. جی نہیں یہاں آ کے بولیے. تھینک یو سو مچ امین, میں بالکل آپ کو میرے ذہن سے نکل گیا. بالکل آپ منت کشے تابے شنیدن داستاں میری, یہ خاموشی گفتگو ہے داستاں میری. یہ ہاں You want to participate? No. یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا, یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. واہ ہوتا. کوئی بھی بولتے جس کو پہلے آتا ہے. بھائی فرا آپ ہی پڑھ دیں. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا. انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان ہے. واہ واہ یہ گیارہ مسئلے مسلم کو جو زندہ تمنا, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. یادوں کی خلش ہے نہ دھڑکنے کی صدا ہے, یادوں کی خلش ہے نہ دھڑکنے کی صدا ہے, محسوس یہ ہوتا ہے کہ دل ٹوٹ گیا. یا الہی کیا ماجرا ہو گیا, جنگل ہرا ہو گیا. نہیں یہ شعر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دن میں سب چلتا ہے, ہم بھی ادب. ہرا ہو گیا. آج جانے کی ضد آجا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا, آجا کے بہاروں پہ ابھی برف جمی ہے, خوشبو کے جزیروں سے پہاڑوں کی حدوں تک, اس شہر میں سب کچھ ہے بس ایک تیری کمی. یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ, یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ, نادان پھر مجھے سے بلایا نہ جائے گا. الف ایسے کہہ رہے تھے پہلی بار. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ بڑھ جائیں گے, بڑھ کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. بالکل صحیح شعر سنایا ہم نے, نمبر ہے یہ عنایت غضب کی یہ
کربلا کی مہربانی ساقی نے میری خیریت کسی غیر کی زبان. ہزاروں سال نرگس میرے خدا میری خاک اتنی اجال دے کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. یاروں میں نے اپنا سینہ اپنے ہاتھوں شاد کیا ہے. یاروں میں نے اپنا سینہ اپنے ہاتھوں شاد کیا ہے. سچ کہتے ہو لیکن دیکھو اپنے ہاتھوں سی کو رہا. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے مثال اگر اور جیتے رہتے ہو چکا ہے. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا عمر طاؤس و رباب. رے سے کوئی شعر کہنا چاہے گا پلیز آڈینس میں سے. یہ ابو جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو. یہ ابو جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو. ہم سفر کوئی نہ ہو. آخری شعر بہت خوب. واو. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. واہ واہ. وہی یعنی وعدہ نبھا. بھائی ایک ہی مصرع یاد ہے. وہی یعنی وعدہ نبھا کا تمہیں یاد ہو کہ نہ. بھائی ریپ ہے کہ شیر کا ہو یاد کرتے آئی یہاں پہ حلیف علی کے بنانے. چلو آگے نہیں بہت سے تھا واو سے پاس جو ہم نے تم نے قرار اچھا وہ سنا دیا. Anybody from wow سے؟ واو ہم سے کچھ اس طرح سے بچھڑے. کس طرح سے؟ بک گیا گوشت رہ کے چھچڑے. یہ میرے خیال سے یہ گلاب خان کا شعر وہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے ہار کیا یہ چھوٹی یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. یہ مسائل تصوف تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبات خار ہوتا. الف الف الف. اس دن سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا. واہ 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 کیا بات ہے. یارو مجھے معاف کرو. یاد ماضی عذاب ہے یار. ہو گیا ہے. میں بیمار نہیں ہوں تو یاد سے بات کرتے تو ایسے ہی ہو. یہ بھی ہو گیا. ہو گئی نور. ستانوں میں اصل شعر تو شاہی ہے پسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. نون سے نظر نظر میں رہوں تو کیا حاصل. رہوں تو دل میں رہوں. اچھا چلے آپ دوسرے کے لیے بچا کے رکھیں. کیا ہوتا
इस दर्द दिल से बढ़कर है दर्द जिगर लतीफ से है जितने दर्द वो सब हैं मगर लतीफ साल से जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो तराजदां अपना। मगर बहुत का लाभ नहीं है, मगर मैं रात की रफ्तारी उनकी तो देखो डेली पर सड़की से बातें हैं। तालियां होनी चाहिए, तालियां तो बजाए याद ले आ रही है स्टार बोले जी। क्या है लब? ये यूं भी हुआ कि रो न सके जब तो हंस दिए, यूं भी हुआ कि रो न सके जब तो हंस दिए, करके ताल्लुकात का गंभीर। ये आखिरी शेर है बिलाल, आपके शेर से डर लगता है भाई। मैं सुना दूं, मैं अलग से सुना दूं। आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए, आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल रात हो जाए कोई तकाजा। आखिरी लास्ट शेर गो है। ना ये चीटिंग है। नो चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस बैठबाजी से ये अंदाजा हुआ कि हर हफ्ते इस शहर में शेर और अदब की महफिल होनी चाहिए। राम भाई बताइए आप प्लीज। हाँ जी, नतीजा बताइए कि इनमें से किसको अवार्ड दिया जाए। और मैं अवार्ड देने के लिए आपको प्लीज नहीं भाई आपको बुलाऊंगी कि आपकी तरफ से ये टॉप लाइन अवार्ड की तरफ से अवार्ड है प्लीज। मुशर्रफ भाई प्लीज है। आप दोनों मिलकर दीजिएगा अवार्ड। अवार्ड जज जो है वो बहुत मामूली जज नहीं है, बड़ी गौर और फिक्र के बाद ये बहुत जज करके जज बनाया गया। अगर आप लोगों ने मुझे जज बनाया तो इसमें आपके जजमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि ये जज जो है इसने 2-3 चीजें देखी। सिर्फ ये नहीं देखा कि किसने शेर सुनाया, ये नहीं देखा किसने सही या गलत शेर अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि ये भी देखा कि कितने अच्छे अंदाज में सुनाया। ठीक है, वो बात अलग है। तो ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि अम्बरीन जो है उन्होंने सबसे बेहतर तरीके से पेश किया। नहीं भाई अपना रोशन से नकाब होता है, नहीं सर कान से भी उतारिए सर, तस्वीर आएगी। पाकिस्तानी जज है। थैंक यू सो मच। फारूक बस गए, मुशर्रफ भाई आप दोनों पास कह दीजिए, फिर मैं आपकी शेर करूँगी। भाई दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसा लगता है कोई शख्स इस जगह से नहीं उठा है, इससे पता लगता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम जी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमारे नए मेंबर्स का, एक बार फिर चंद्रा का, सबा खान का, हमारे अली शहजाद का, फरा का, फारूक का कि इन्होंने बज़्म को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, जिस जगह रहिए वहाँ मिलते मिलाते रहिए। बहुत शुक्रिया, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। सदफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इनके लिए भरपूर तालियां। बहुत